So yesterday we discussed about right hand palm rule. According to right hand palm rule, if this is the direction of DL, what we have taken? We have taken a length, a current element IDL, and we have taken a point P where we were supposed to find the magnetic field. The current flowing in the wire was I, and according to Biot-Savart law, the magnetic field at a distance r was given by mu naught upon 4 pi I dl cross r upon r cube, or we can say dB was mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. That is what we have learned yesterday, that whenever we need to find the magnetic field at some distance r due to a current element IDL, right? The magnetic field was mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, where theta is the angle between the current element and the displacement vector, right? So now we are going to discuss today that what happens when this point P lies here, then sin 90, and when we keep sin 90 here, dB becomes mu naught upon 4 pi I dl upon r square, right? Now the same point P lies somewhere on the axis of the wire. यहाँ पे कहीं point P है. So in that case, for this DL element, suppose हमने point P यहाँ पे ले लिया. For that case, theta will be 0 degree. If we take DL here, IDL here, and we take, it means wherever we will take it on the axis, the magnetic field and on the axis will be 0. This we have to remember. And using this, we are going to find magnetic field on different types of different shapes of current carrying circular coil. You must have studied in 10th also. In short, rather than writing the whole thing current carrying circular coil, we'll write down CCCC. Current carrying circular coil, right? Now we have learned that if this is the current flowing in a wire, say this is the current flowing in a wire, there is a straight wire, then what will be the shape of the magnetic field? Say this is a wire and it is carrying a current I, because it is a straight wire, and because it is a straight wire, the direction of magnetic field will be around, say assuming this is the magnetic field, ये magnetic field है इस wire में current की वजह से, right? And if you remember 10th standard, then the direction of magnetic field, using right hand palm rule we can find out the angle and we can find out the directions of DL, R and B. As we discussed yesterday, अगर ये I में है, ये J में है, then I cross J will be the magnetic field, the normal to the magnetic field, the direction of magnetic field will be perpendicular to both of them, right? Now this direction of current carrying, says suppose this is a current carrying conductor. For any current carrying conductor, we can also find the direction of magnetic field by right hand thumb rule. Right? What is right hand thumb rule? If this is the direction of current, the thumb represents the direction of current, then the curling of the fingers, हम fingers को ऐसे नहीं ले जाएंगे, curling of the fingers will represent the direction of magnetic field. अगर ये कंडक्टर है जिसमें करंट I upward है, then the direction of magnetic field will be like this, clockwise or anti-clockwise. Now imagine this is, you are holding a wire, you are holding this wire, and the thumb represents the direction of the current. Then the curling of fingers, if you look from above, the curling of fingers will be anti-clockwise. So for this current carrying conductor, the direction of magnetic field will be anti-clockwise. We name this rule as right hand thumb rule. You must have studied in 10th also. So if this is the direction of the current and ऐसे हमें magnetic field find करना है, then the direction of magnetic field will be right hand, means you have to use right hand. Curling of finger is in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. करंट अगर ऐसे वायर में जा रहा है किसी भी वायर में, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. अभी इस सर्कल पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, राइट? सो यस, इफ आई एम होल्डिंग इट लाइक दिस, सर्कल नहीं है ये हेयरबैंड, बट यू एज्यूम दिस इज अ सर्कल. इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. सो हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट? वी ड्रॉ अ टेंजेंट. ये ऐसे ले लेते हैं. इस पॉइंट पे अरे
इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है टेंजेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है टेंजेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट पे फाइंड करना है टेंजेंट। सो एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिफरेंट, राइट? This we are going to apply in so many applications of Biot-Savart's law, right? So, if the current is upward, the magnetic field lines will be anti-clockwise, anti-clockwise. ऐसे magnetic field line का direction लेंगे. And if the current is flowing in the conductor is downward, now same right hand thumb rule. You invert the position of the hand. अभी करंट नीचे जा रहा है, सो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यू कैन ट्राई दिस, ऊपर से देखने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज. सो वी से व्हेन द करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड इन अ कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्लिंग ऑफ द फिंगर इज क्लॉकवाइज. So if I am taking it downward, then the direction of magnetic field will be clockwise. Clockwise. Now this is very very important. Looking at this, we decide कि किसी भी circular coil में, अभी जरूरी नहीं है कि हर बार conductor straight हो, it could be circular also. Now if the conductor is circular, then how do we calculate, how do we find the direction of the current, right? We'll discuss that. Yes. Now say this is a conductor. ये ऐसे circular coil carrying current. This is a circular. ये distance we will ignore. तो current ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, and coming back here. अगर current पता है, you can easily find the magnetic field line. But if you know current, if we will do opposite also. If we know magnetic field, we can easily find out what is the direction of current, right? That also we will discuss now. अभी हमने एक सर्कुलर कॉइल लिया, दिस इज अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इट इज कैरिंग अ करंट आई. अभी इस सर्कुलर कॉइल में हाउ डू वी डिसाइड कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? अगर हम लेफ्ट वाला साइड देखें तो करंट अपवर्ड है, डाउन वाला साइड देखें तो करंट डाउनवर्ड है, ये राइट वाला, और यहाँ पे देखें तो करंट ऐसे. तो हाउ डू वी डिसाइड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट? सो लेट अस टेक दिस हेयर बैंड अगेन. कंसीडर दिस इज अ सर्कुलर कॉइल, और ये सर्कुलर कॉइल में करंट कैसे लिया? क्लॉकवाइज है. ये ऐसे करंट है क्लॉकवाइज, राइट? सो यहां से करंट एंटर होना शुरू हुआ. करंट यहां पे कैसा है? ये वाले आर्म में करंट इज अपवर्ड. व्हेन करंट इज अपवर्ड, यू सी द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर. आई एम होल्डिंग दिस कंडक्टर एंड यू सी द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स? इनटू. ये करंट ऐसे है, ये वाले एंड में करंट ऐसे है, तो ये देखो कर्लिंग कहां जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, राइट? अब यहां पे देखो, दिस इज द राइट साइड, करंट कैसे जा रहा है? करंट इज डाउनवर्ड, करंट इज डाउनवर्ड. सो आई विल इन्वर्ट माई फिंगर लाइक दिस. थंब ऐसे हो गया, डाउनवर्ड जा रहा है तो करंट ऐसे हो गया. अभी कर्लिंग ऑफ फिंगर कहां है? अंदर की तरफ. यहां पे जब मैंने किया तब भी इनटू द कॉइल, यहां पे जब किया तब भी इनटू द कॉइल. ऊपर वाला पार्ट देखते हैं. करंट कैसे है? ये साइड में है, करंट ऐसे एंटर होके ये साइड में, तो आई विल डू होल्ड इट लाइक दिस. सो करंट कैसे है? इनटू द कॉइल. आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? अपवर्ड में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द कॉइल. यहां पे करंट ऐसे है, इनटू द कॉइल. यहां पे करंट डाउनवर्ड है, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स देखो, इनटू द कॉइल. सो इनटू इनटू इनटू. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इनटू द कॉइल, इनवर्ड्स, right? And whenever current is inwards, so what is the direction of magnetic field shown here? Magnetic field will be shown like this. Is that clear? Magnetic field will be shown like this. This shows that the direction of magnetic field is into the plane of the paper or into the board. Now let us rewind the direction, right? Let us say abhi current हमने ये क्लॉकवाइज था, अभी यहां से करंट एंटर करा, एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड, लेफ्ट साइड, डाउनवर्ड. नाउ लेट अस सी, और यहां से वापस आ रहा है. लेट अस इन्वर्ट द डायरेक्शन. ये देखो करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड. अभी हम करंट यहाँ पे अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स द रीडर. ऐसे अगर हम इसको होल्ड करेंगे, कर्लिंग ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द रीडर. यहाँ पे करंट ऐसे है, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स द रीडर. इसको हम अगर ऐसे होल्ड करें तो ये देखो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स.
यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड अगर हम देखें, ये डाउनवर्ड करंट है, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स द रीडर। तो मतलब अगर करंट देखो, करंट स्ट्रेट था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हमने एक कर्व की फॉर्म में लिया था, लेकिन अभी करंट ही कर्व की फॉर्म में जा रहा है, सर्कुलर लूप में करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्ट्रेट इनटू, यहाँ पे टुवर्ड्स द रीडर, यहाँ पे टुवर्ड्स द रीडर, यहाँ पे टुवर्ड्स द रीडर। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड्स द रीडर। सो दिस यू हैव स्टडीड इन 10th ऑल्सो। और यहीं से हमारा एक और साइन कन्वेंशन आता है। व्हाट इज द साइन कन्वेंशन, अगर किसी भी लूप में करंट क्लॉकवाइज है, करंट कैसे है, क्लॉकवाइज, करंट कैसे है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इसको दोनों को मिला दो, क्या बन गया, साउथ। सो दैट विल रिप्रेजेंट साउथ पोलैरिटी, साउथ पोलैरिटी। आई होप यू हैव स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड साउथ पोलैरिटी। साउथ पोलैरिटी का मतलब, if you take a bar magnet, remember 10th standard में what you have studied, if we take a bar magnet having north pole and south pole, magnetic field lines north से निकलती है, south की तरफ जाती हैं, right? Magnetic field lines emerge from north pole and end at south pole, right? तो north pole का मतलब emerging out, magnetic field बाहर आ रही है, साउथ पोल का मतलब इनटू, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी, इनटू, इनटू का मतलब साउथ, इसलिए क्लॉकवाइज करंट का पोलैरिटी हम क्यों क्या लेते हैं, वी टेक इट साउथ ऑलवेज, नथिंग न्यू, यू हैव स्टडीड इन 10th। सिमिलरली अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, हमने कहा एक लूप है जिसमें करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज देखो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को मिला दो, बस एन बना दो। रिमेंबर साउथ है तो मतलब क्लॉकवाइज है तो साउथ पोलैरिटी, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे तो हम एस नहीं बना सकते एंटी क्लॉकवाइज में, राइट, बिकॉज एरोस हैज टू बी ऑन द कॉर्नर्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ पोलैरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्थ पोलैरिटी हियर, नॉर्थ पोलैरिटी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, आउटवर्ड, क्योंकि डायरेक्शन आउटवर्ड थी तो हम क्या बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। अगर क्लॉकवाइज करंट है इट विल हैव साउथ पोलैरिटी। क्यों साउथ पोलैरिटी, क्योंकि जब हम किसी सर्कुलर कॉइल में क्लॉकवाइज करंट देखते हैं तो यहाँ पे भी इनवर्ड है, यहाँ पे भी इनवर्ड है, यहाँ पे भी इनवर्ड है, सुपरपोजिशन लगा दो, ओवरऑल क्या होगा, इनवर्ड होगा। इनवर्ड मतलब साउथ पोलैरिटी। इसी तरह से जब हमने ये लिया तो करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड, हर एक पॉइंट पे क्या होगी, आउटवर्ड, सुपरपोजिशन, सबको ऐड कर दो, ओवरऑल भी क्या होगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब नॉर्थ पोलैरिटी, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ एंड क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोलैरिटी बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। आई होप राइट हैंड थंब रूल इज क्लियर टू यू। एनी डाउट्स यू मे आस्क। So wherever we see in a current carrying circular coil, CCCC, clockwise current south, anti-clockwise current north polarity, depending on the magnetic field lines का basic characteristic properties, right?